Assalamualaikum to everyone. So good morning. Another presentation that is about the MCB Islamic banking. So MCB is basically, we consider MCB is a conventional banking, but it has also opened its another window of the banking, which is called as a MCB Islamic banking. So what is the difference between the MCB conventional banking and the MCB Islamic banking? So that is going to be discussed by our group. The group leader is Mr. Dost Ali Bukti. He will discuss about and group member will discuss about the vast difference between the MCB conventional banking and MCB Islamic banking, and especially what are the different products is MCB Islamic banking they are offering to customers. So that is all about will be discussed today. So I would like to invite Mr. Dost Ali Bukti to come on the dais and introduce your group member and then start your presentation formally. The most merciful and most beneficent, respectable Sir Rahim Baksh Sumro Sahab and my classmates, Assalamu Alaikum. You know, today is our presentation, but before we are very thankful to Sir Rahim Baksh Sumro Sahab who gave us opportunity on the topic MCB Islamic Bank. So before starting presentation, I want to introduce myself and my class group members too. So this is Dost Ali, student of Business Administration from Shah Abdul Latif University, and I would like to call Mr. Zubair Ahmed with your round of applause. Mr. Zubair Ahmed. He is also a student of Business Administration from Shah Abdul Latif University, specialization in finance. Now, third one is Mr. Naeem Abbas. With round of applause, I would like to call Mr. Naeem Abbas. And last but not least, I would like to call Mr. Samiullah Sumro with your round of applause. Thank you so much. We are giving presentation on the topic MCB Islamic Bank. Now you can take your seat, please. So for to start the presentation, I would like to call Mr. Naeem Abbas. Please come on the stage and to start presentation to introduce MCB Islamic Bank, VN mission and the core values of the MCB Islamic Bank. Thank you so much. My name is Naeem Abbas and I am a student of BBA at Shah Abdul Latif University. First of all, I am very thankful to Dr. Rahim Baksh Sumro that he gave me a chance to perform this type of activity. First of all, introduction of MCB Islamic banking. It is Pakistan Islamic banking that is subsidiary of MCB Bank, and it is established in 14 August 2015. Its headquarters is in Lahore, Pakistan. Today, MCB Islamic Bank pre-tax profit suggests to purchase 7.5 billion. It means that the MCB Islamic Bank earned profit about 7.9 billion before tax. MCB Islamic Bank has more than 200 branches in Pakistan, and MCB Commercial Bank have more than 1,400 branches. And MCB Islamic Bank have 185 plus ATMs. And the total employees of who work in MCB Islamic Bank is about 5,000. Now VN and mission. VN to be the leading provider of Sharia compliant innovative financial products with a focus on service quality. ये जो MCB इस्लामिक बैंक है वो प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को फाइनेंशियल प्रोडक्ट, वो शरिया कंप्लेंट के मुताबिक होता है, और वो प्रोवाइड करता है अपनी सर्विस हाई क्वालिटी अपने कस्टमर्स को, एंड गिव सुपीरियर वैल्यू ऑफ आवर कस्टमर शेयर होल्डर एम्प्लॉयज है, और अपने कस्टमर शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज़ और कम्युनिटी को हाई वैल्यू प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है मिशन, तो प्रोवाइड इनोवेटिव शरिया कंप्लेंट फाइनेंशियल सॉल्यूशन। वो प्रोवाइड करता है एक आला दर्जे का शरिया कंप्लेंट्स अपने कस्टमर को, और वो अच्छी क्वालिटी देता है प्रोडक्ट्स और सर्विस में अपने कस्टमर्स को।
टू मैक्सिमम हलाल रिटर्न फॉर आवर शेयर होल्डर, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हलाल अर्न करके अपने शेयर होल्डर को देता है। उसके बाद आता है कोर वैल्यूज़। We are Sharia driven. Following are the Sharia. We will conduct our activity in the fair, ethical and socially responsible manner. MCB इस्लामिक बैंक वो फॉलो करता है शरिया को और वो कंडक्ट करता है एक्टिविटीज अपनी एथिकल और रिस्पॉन्सिबल मैनर के हिसाब से। उसके बाद आता है डेडिकेटेड एंड डिपेंडेबल। उसमें यह होता है कि वी विल बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड्योरिंग रिलेशनशिप डिलीवरिंग एन एक्सपीरियंस दैट डिलाइट आवर कस्टमर। हम अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाते हैं और उसे प्रोवाइड करते हैं हाई वैल्यू और सर्विसेज। उसके बाद है इंस्पायरेशनल। वी विल बी प्रोफेशनल एंड फुलफिल आवर कमिटमेंट्स डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। हम जो हायर कर MCB इस्लामिक बैंक वाले हायर करते हैं हाई प्रोफेशनल वाले बंदे, और वो फुलफिल करते हैं सारी कमिटमेंट जो नीड्स होती हैं उनके कस्टमर्स को, उनको प्रोवाइड करता है हाई लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। डेट्स ऑल। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर जुबैर अहमद, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। I am here to discuss you with about the accounts of MCB Islamic Banking. जैसी तरह हर बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं इसी तरह MCB इस्लामिक बैंकिंग में भी अकाउंट्स होते हैं। उसमें करंट्स अकाउंट्स हैं, उसके बाद सेविंग अकाउंट्स हैं, उसके बाद टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स हैं और डिजिटल अकाउंट्स हैं। जो करंट अकाउंट्स हैं इन करंट्स अकाउंट्स कर्ज MCB इस्लामिक बैंकिंग में करंट अकाउंट कर्ज के बुनियाद पे यानी कि कर्ज हुस्ना के बुनियाद पे रन कर रहा होता है, और जो MCB कन्वेंशनल बैंक में अकाउंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट और मार्कअप के बुनियाद पे रन कर रहा होता है। उसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो भी MCB इस्लामिक बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं वो सेविंग भी होता है, करंट भी होता है और टर्म डिपॉजिट भी होता है। इस फॉरेन MCB इस्लामिक बैंक फॉरेन करेंसी अकाउंट में 4 फॉरेन करेंसीज को ये एक्सेप्ट करता है, जिसमें यूरो, डॉलर, यान होता है। उसके बाद टर्म सेविंग अकाउंट से MCB इस्लामिक बैंक में मुदारबा के बुनियाद पे होता है। मुदारबा के बुनियाद पे जिसमें कस्टमर रब्बुल माल होता है और बैंक यानी कि फंड मैनेजर मुदारब का किरदार अदा कर रहा होता है। और जो मेन डिफरेंस है कन्वेंशनल बैंक के सेविंग अकाउंट्स में और इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट्स में वो ये है जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी गारंटी। कन्वेंशनल बैंक में सेविंग अकाउंट्स की गारंटी होती है, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें कोई भी लॉस का चांस नहीं होता है। और जो सेविंग अकाउंट्स कन्वेंशनल बैंक का होता है उसमें जो इस्लामिक बैंक का कन्वेंशनल अकाउंट होता है उसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट्स की कोई भी गारंटी नहीं होती है। उसमें आपका जो डिपॉजिट है उसमें लॉस का चांसेस होते हैं, और जो लॉस होता है अगर पूल में लॉस आ गया है तो जो आपका एग्रीड रेशो या प्री डिटरमाइंड रेशो है एग्रीमेंट के दौरान उसके बुनियाद पे आपको लॉस पे करना पड़ेगा। उसके बाद मीकार इज़ द स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ MCB इस्लामिक बैंक। इट इज़ रन थ्रू द डिमिशिंग मुशारका के तहत मायकार प्रोडक्ट पे करता है, जिसमें बैंक कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करता है और डिमिशिंग मुशारका यानी कि इंस्टॉलमेंट के थ्रू ओनरशिप। डिमिशिंग मुशारका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ओनरशिप बैंक ट्रांसफ़र कर रही होती है अपने कस्टमर के लिए, और ये इक्वल मंथली रेंट के थ्रू यानी कि इजार का थ्रू ये ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है बैंक टू कस्टमर। उसके बाद राश फिनांस के यानी कि जो एवरीवन वांट राश और होम फॉर आवर लिविंग, देयरफॉर मुस्लिम इस्लामिक बैंक प्रोवाइड राश फिनांस भी मुशारका डिमिशिंग मुशार के बुनियाद पे ही होता है इस्लामिक, जो जिसका फीचर्स ये हैं कि 60 मिलियंस तक भी होम के लिए ये होम की कंस्ट्रक्शन के लिए राश फिनांस के तहत मुस्लिम इस्लाम बैंक फंड प्रोवाइड करती हैं अपने कस्टमर के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ
debit cards to their customers, in which Qadar card, Qadar Gold card, Platinum card, Payback Classic card. कदर कार्ड में वन डे में 50,000 सी सिर्फ वन डे में 50,000 सिर्फ ही विथड्रा करवा सकते हैं हम, और कदर गोल्ड कार्ड में हम 1 लाख तक एक वन डे में विथड्रा करवा सकते हैं। उसके बाद प्लैटिनम कार्ड है जिसकी जो कैपेसिटी है वन डे में 2 लाख तक हम विथड्रा करवा सकें, और पे बैक क्लासिक में हम 1 लाख विथड्रा करवा सकते हैं एक दिन में। ये कार्ड की जो सहूलत है एटीएम के पास वो 24 आवर्स अवेलेबल हैं। और नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर समीउल्लाह हु डिस्कस विथ यू अबाउट। My name is Samiullah. Today's my topic is शरई कारोबार। ये शरई कारोबार ये ऐसा है मुदारबा बेसिस है, जिस मुदारबा मतलब है कि बैंक एक प्रोडक्ट परचेज करेगा और वो कस्टमर को देगा एक स्पेसिफिक प्राइस पे, जिस पे वो एक्चुअल प्राइस पे के ऊपर वो 10 या 15% वो अपनी चार्जेस लेंगे। वो उसकी लिमिट है 5 लाख तक। और फीचर्स हैं, फीचर्स फ्राम शरई कारोबार 10,000 से 5 लाख तक। और इसका पे करने का ट्यूनर है 3 माह से 24 माह तक। इजी इंस्टॉलमेंट बुलेट पेमेंट्स, और ये आसानी से इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर सकते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन ये प्ले स्टोर से आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आसानी से लॉग इन और लॉग आउट हो सकता है मोबाइल के ज़रिए। और फीचर्स ऑफ मोबाइल ऐप व्यू अकाउंट बैलेंस, आप फ्री में बैलेंस चेक कर सकते हैं अकाउंट का। व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। डेबिट कार्ड मैनेजमेंट, आप डेबिट कार्ड की मैनेजमेंट आसानी से कवर कर सकते हैं। ऑन अकाउंट फंड ट्रांसफ़र, और एक बैंक से दूसरी बैंक से में फ़ंड्स आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र विद इन इस्लामिक बैंक, और किसी और इस्लामिक बैंक में फ़ंड्स बआसानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटर बैंक ट्रांसफ़र्स, यूटिलिटी बिल्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन UPS, आप यूटिलिटी बिल्स और मोबाइल के तमाम जो फंक्शन है आप आसानी से यहाँ कवर कर सकते हैं। शेड्यूल ट्रांसफ़र्स, वो टच ID, फिंगर सेंस एंड बेस्ट लॉगिन, ये फिंगरप्रिंट के ज़रिए अगर आप किसी टाइम पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए ही ये आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। ATM ब्रांच लोकेटर, ये आपको सहूलत फराहम करता है ATM को ढूंढने में। नाउ वुड लाइक टू मिस्टर दोस्त टू कंटिन्यू। जैसा कि प्रोडक्ट्स हमारे MCB इस्लामिक बैंक के हो गए हैं, तो उसके बाद में आता है सर्विसेज, मतलब कौन सी सर्विसेज ऑफ़र करता है MCB इस्लामिक बैंक टू द कस्टमर्स। तो सर्विसेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने जो 2 उठाए वो मेन सर्विसेज हैं, तो इसलिए मैंने 2 पिकअप किए हैं। नंबर 1 है प्रिज्म सर्विसेज एंड अदर वन इज़ FX सर्विसेज। नाउ व्हाट आर दीज 2 सर्विसेज? नंबर 1 इज़ प्रिज्म सर्विसेज। प्रिज्म का जो मीनिंग है, फुल फॉर्म है, वो है पाकिस्तान रियल टाइम इंटर बैंक सेटलमेंट मैकेनिज़्म। इसमें क्या होता है कि आप जो है ना इजीली मतलब आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं MCB इस्लाम बैंक के अकाउंट में, या MCB इस्लामिक बैंक अकाउंट किसी और बैंक में ट्रांसफ़र आप मतलब इजीली बाय इस प्रिज्म सर्विस के थ्रू आप जो है ट्रांसफ़र फ़ंड वगैरह कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं इजीली। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना हो तो भी आप प्रिज्म के थ्रू आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी और बैंक से आप MCB इस्लामिक बैंक में आप फ़ंड रिसीव करना चाहते हैं तो भी आप मतलब प्रिज्म के थ्रू आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा है FX सर्विसेज। FX सर्विसेज में क्या होता है कि ये है
मतलब फॉरेन एक्सचेंज के नाम से ये फेमस है एफएक्स सर्विसेज। तो आप ये है कि एफएक्स सर्विसेज फॉर ट्रैवल एजुकेशन एंड मेडिकल एब्रॉड, मतलब एमसीबी इस्लामिक बैंक प्रोवाइड करता है कि आप जो है अगर आप जाना चाहें किसी एब्रॉड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवल के लिए या किसी भी मतलब किसी भी रीज़न के लिए आप अगर जाना चाहें तो आप एफएक्स सर्विसेज थ्रू एमसीबी इस्लामिक बैंक के मतलब आप जा सकते हैं विदाउट एनी मतलब किसी भी परेशानी के। उसके बाद में ये डिपार्टमेंट्स ऑफ एमसीबी इस्लामिक बैंक, एमसीबी इस्लामिक बैंक में जो है वो डिपार्टमेंट और भी हैं, लेकिन ये जो हैं 4 डिपार्टमेंट बहुत ही फेमस हैं, तो इसलिए मैंने ये मतलब यहाँ से उठाए हैं। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एंड सेकंड वन इज कैश डिपार्टमेंट, एंड थर्ड वन इज अकाउंट डिपार्टमेंट, एंड फोर्थ वन इज सेल डिपार्टमेंट। नाउ अब देखें तो इसका काम क्या है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में लर्न अबाउट द टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब डेली के बेसिस पे जो काम होते हैं एमसीबी इस्लामिक बैंक में वो क्या करता है कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट विल मतलब सब कुछ वो डिपार्टमेंट एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कैश डिपार्टमेंट इन हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आपके मतलब एमसीबी इस्लामिक बैंक में, फॉर एग्जांपल कैश जा रहा है या आ रहा है, ये सब कुछ ट्रांजैक्शन जो भी हैं ये कैश डिपार्टमेंट विल हैंडल दीज ऑल थिंग्स। थर्ड वन इज अकाउंट डिपार्टमेंट। अब अकाउंट डिपार्टमेंट का क्या काम है कि वो डिस्कवर हाउ दिस डिपार्टमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड हैं वो उसको मतलब कैसे वो मैनेज करते हैं, फुलफिल करते हैं, अपने रिकॉर्ड वगैरह कैसे वो अपने बैंक मतलब अपने साथ रखता है, ताकि कभी भी जब ऑडिट वाले आते हैं तो उनको मतलब दिखाने में इजीनेस हो, इसलिए ये सारे रिकॉर्ड मतलब कीप रखते हैं अपने पास, ये सही तरीके से संभाल के रखते हैं। उसके बाद है सेल डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट का क्या काम है कि फाइंड आउट हाउ दिस डिपार्टमेंट ड्राइव्स बिजनेस ग्रोथ थ्रू द प्रमोशन ऑफ एमसीबी इस्लामिक बैंक्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब कि आपके एमसीबी इस्लामिक बैंक में कितने प्रोडक्ट्स मतलब आपके वो सेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये एमसीबी इस्लामिक बैंक मतलब सारा काम जो है सेल डिपार्टमेंट ये करता है। उसके बाद है ये हमारा लास्ट है मतलब द रिकमेंडेशन फॉर द एमसीबी इस्लामिक बैंक। पहले तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एमसीबी इस्लामिक बैंक अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ रिकमेंडेशन हम अपने मतलब हिसाब से अगर देना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे मतलब शो कर लिया है। वो है फर्स्ट नंबर पे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर टू ऑल द एम्प्लॉइज। एमसीबी इस्लामिक बैंक को चाहिए कि वो अपना गोल और वो जो भी उसका मतलब ऑब्जेक्टिव है वो अपने क्लियर होने चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, फर्स्ट ये है। और नंबर 2 है सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग सेशन शुड बी कंडक्टेड। अपने एम्प्लॉइज़ के लिए मतलब सेमिनार्स भी वो अगर कराना चाहें या ट्रेनिंग सिस्टम ये भी करवाना चाहें तो वो भी वो एमसीबी इस्लामिक बैंक करवा सकता है। जैसे एमसीबी इस्लामिक बैंक कैन गिव यू इंटर्नशिप्स, ये भी एक किस्म का ट्रेनिंग है स्टूडेंट के लिए। थर्ड वन इज ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी शुड बी एक्टिवेटेड इन एवरी ब्रांच। ऑनलाइन सिस्टम कभी कभी हम जाते हैं मतलब किसी भी एटीएम के ऊपर तो वहाँ पे मतलब कुछ एरर आते हैं या कोई ऐसा मतलब लिंक डाउन होता है, तो उस हिसाब से ऑनलाइन का इसका फैसिलिटी जो है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए दूसरे बैंक्स के कंपेयर में। नंबर 4 इज शुड ओपन मोर ब्रांचेज इन द रूरल एरियाज। जो रूरल के हमारे एरियाज हैं वहाँ इनको चाहिए कि वो अपना जो है ब्रांचेज ओपन करवाएं ताकि फैसिलिटी होने चाहिए। और नंबर 5 पे मैंने रिकमेंडेशन ये लिखा है कि शुड प्रोवाइड अवेयरनेस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास हमारे एमसीबी इस्लामिक बैंक में, बट उनके बारे में मतलब अवेयर नहीं है लोग, मतलब कस्टमर्स को ये पता नहीं है कि हमें ये टेक्नोलॉजी किस हिसाब से यूज़ करना चाहिए।
तो ऐसे ना हो कि आप अवेयरनेस दें, जो मतलब किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी मतलब एक्टिविटी के थ्रू आप जो है ना अवेयरनेस दें लोगों को, मतलब कस्टमर्स को, ताकि ये टेक्नोलॉजी से आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, प्लीज़ कम। जो आपने प्रिज्म सर्विस बताया था कि इजीली फ़ंड ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, उसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं हो? अगर जैसे कि किसी और बैंक से हम एमसीबी इस्लामिक बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ़ंड्स, तो कोई टैक्स वगैरह नहीं है इसमें है? टैक्सेस वो डिफरेंट होते हैं सब बैंक्स के। तो अगर आप एमसीबी इस्लामिक बैंक की आप बात कर रहे हैं तो वो उसका मतलब एक प्रोसीजर होता है, आप कितना मतलब फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उसका मतलब कितना टैक्स पर आपके ऊपर मतलब लगे या नहीं होगा जब आप विदड्रा करेंगे उसके बाद में, अदरवाइज मतलब ये कुछ नहीं है। अगर हम ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करें किसी और बैंक एमसीबी इस्लामिक बैंक से किसी और बैंक में, तो नहीं लगेगा कोई भी वो टैक्स? नहीं लगेंगे। प्रिज्म के बारे में बताया, पाकिस्तान एंड रियल टाइम इंटर बैंक सेटलमेंट मैकेनिज़्म, तो ये सर्विसेज एमसीबी की हैं? हाँ, एमसीबी आल्सो प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ। अच्छा, मैं आपको एक बात पे क्लियर करता चलूँ तो ये जो सर्विसेज है ना, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती है। पहले इसका नाम आरटीजीएस था, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। सही है। ये हर बैंक के पास होता है। ये सर्विसेज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है, जिसके थ्रू ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आप कहीं से भी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रिज्म के पास जाएगा, रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास होगा उसका, फिर आगे जाएगा। ये सर्विसेज एमसीबी की नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सब बैंकों को देता है, लेकिन वो जो है ना मतलब फिर एमसीबी इस्लाम बैंक है या दूसरे बैंक हैं वो भी मतलब ये प्रिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो ऑनलाइन बैंकिंग आपने लिखा है ये तो एमसीबी वैसे ही प्रोवाइड कर रही है, और जो गोल्स ये जो आपने रिकमेंडेशंस दी हैं ये आपने किस हिसाब से बनाई है? मतलब ये सारी चीज़ें तो एमसीबी ऑलरेडी कर रहा है, तो आपने ये रिकमेंडेशन किससे, एक दफ़ा विज़िट करके आप इतनी रिकमेंडेशन कैसे दे सकते हैं एक प्रॉपर बैंक को? नहीं, जो ये मुझे पता है ये ऑलरेडी एमसीबी इस्लामी बैंक कर रहा है, लेकिन कुछ उसमें अगर चेंजिंग होना चाहिए तो उस हिसाब से मैंने ये लिखे हैं, अदरवाइज़ ये ऑलरेडी हैं। सेमिनार्स ट्रेनिंग हर बैंक ऑलरेडी करता है पहले इसका से। मतलब ये है कि ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी शुड बी एक्टिवेटेड इन एवरी ब्रांच। एवरी ब्रांच में मौजूद है, लेकिन एवरी ब्रांच के थ्रू जो कस्टमर के पास अवेयरनेस नहीं है उसके लिए ये उन्होंने हर जगह अकाउंट्स डिजिटल हो रहा भी होता है। और गोल्स और ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं होंगे तो एक बैंक ओपन ही नहीं हो सकती। तो गोल्स कैसे वो एम्प्लॉय हायर करेगा कि जिसके पास गोल्स ही नहीं है? एम्प्लॉय जब हायर करेंगे उसके पास गोल्स होंगे ना कुछ। जी बिल्कुल है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है बिल्कुल। Okay, at the end of this presentation, at the end of this presentation, I think it was a wonderful presentation. The group member, they put all their efforts in order to present wonderfully the content and the introduction of the MCB Islamic banking before you people. And in this regard, thank you very much to all of you that you did a wonderful job. And so that's probably the last the presentation of this semester. So hope so then we will meet in another way some other day. Thank you very much.